حضرت علی رضی اللہ کے یہ 120 اقوال دل کی وہ آنکھ کھول دیں گے جو برسوں سے بند تھی، روح کو اس طرح جگا دیں گے کہ آپ خود کو پہچاننے لگیں گے۔ دل کی آنکھ کھلتی ہے تو خواہشیں خاموش ہو جاتی ہیں اور روح سچ سننے لگتی ہے۔ جو اپنے اندر جھانک لے وہ باہر کے شور سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اصل جنگ دل کے اندر لڑی جاتی ہے۔ روحانیت یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے۔ خاموشی وہ عبادت ہے جس میں ریا نہیں، اور یہی خاموشی رب تک لے جاتی ہے۔ جو نفس سے لڑ گیا وہ کسی دشمن سے ڈرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دل کی بیماری دکھائی نہیں دیتی، مگر یہ ساری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کا ذکر روح کا ایندھن ہے، اس کے بغیر ایمان بھی تھک جاتا ہے۔ خاموش عبادت انسان کو جھکاتی ہے، اور جھکا ہوا دل اللہ کو پسند ہے۔ دنیا دل میں اتر جائے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اور اللہ دل میں آ جائے تو سب واضح ہو جاتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ خود کو بہت سمجھدار دکھاتا ہے۔ روحانی سکون کامیابی میں نہیں، قناعت میں چھپا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے وہ حالات کو اپنا رب نہیں بنا لیتا۔ دل کا بوجھ کام سے نہیں، غفلت سے بھاری ہوتا ہے۔ سچ کا راستہ اکیلا ضرور ہوتا ہے، مگر یہی راستہ رب تک جاتا ہے۔ روحانیت علم سے شروع ہوتی ہے اور عمل پر نہ ختم ہوتی، بلکہ نیت میں زندہ رہتی ہے۔ جو دل اللہ کے قریب ہو وہ زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، اور اللہ کی محبت سب دکھا دیتی ہے۔ نفس کو کھلا چھوڑنا سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اسے قابو کرنا سب سے بڑی طاقت۔ دل اگر زندہ ہو تو آزمائش بھی سبق بن جاتی ہے، ورنہ سزا۔ اللہ کی رضا ہر کامیابی سے بڑی ہے، اور اس سے محرومی ہر ناکامی سے بدتر۔ خاموش آنسو لمبی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ دل اگر صاف ہو تو زبان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نفس کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ خود کو بہت سمجھدار دکھاتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں اتر جائے تو خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ روحانی طاقت بازوؤں میں نہیں، صبر میں ہوتی ہے، جو ٹوٹ کر بھی قائم رہے۔ جو دل اللہ کے سپرد ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا، چاہے ہاتھ خالی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے شور میں رب کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ خاموشی اختیار کرو، دل سننے لگے گا۔ نفس کی بات ماننا سب سے آسان راستہ ہے، اور اسے روکنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دل کو دنیا سے خالی کرو، اللہ خود اس میں نور بھر دے گا۔ جو سچ کے ساتھ کھڑا ہو وہ اکیلا ضرور ہوتا ہے، مگر کمزور نہیں ہوتا۔ روحانیت ظاہر کی تبدیلی نہیں، باطن کی اصلاح کا نام ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے نہیں، ہماری سمجھ جلدی تھک جاتی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ ٹوٹتا نہیں، آزمائش میں نکھر جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھو، یہی اصل جہاد ہے، اور یہی روحانیت کی راہ ہے۔ دل کی آنکھ گناہوں سے نہیں، غفلت سے اندھی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب لمبے سفر سے نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے ملتا ہے۔ روحانی طاقت شور میں نہیں، صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے میں حکمت دیکھ لے وہ کبھی بے چین نہیں رہتا۔ دل کی صفائی وضو سے شروع نہیں ہوتی، یہ نیت سے شروع ہوتی ہے۔ نفس کی غلامی سب سے سخت قید ہے، اور اللہ کی بندگی سب سے بڑی آزادی۔ روحانیت الفاظ میں نہیں، خاموش عمل میں بولتی ہے۔ جو دل اللہ کے سپرد ہو وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ باطن سنور جائے تو راستے خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بار بار توبہ ٹوٹ جانا اللہ سے دوری نہیں، یہ نفس کی کمزوری ہے، رب کی رحمت کم نہیں ہوتی۔ روح سفید چادر کی مانند ہے، گناہ کا داغ اسے زخمی کرتا ہے، مگر آنسوؤں سے دھو دی جائے تو پہلے سے زیادہ پاک ہو جاتی ہے۔
दिल में गंदा ख्याल आ जाना गुनाह नहीं, गुनाह वो है जिसे अमल का लिबास पहना दिया जाए। नफ्स ख्याल फेंकता है, अक्ल उसे पहचानती है और ईमान हाथ रोक लेना सिखाता है। जो ख्याल पर रुक जाए वो महफूज है और जो अमल तक पहुंच जाए वही हिसाब में आएगा। गुनाह से नफरत ईमान की अलामत है और इसी नफरत में तौबा की कबूलियत छुपी है। मैं गुनाह से नहीं डरता, मैं उस दिल से डरता हूं जिसे गुनाह पर शर्मिंदगी भी ना हो। अल्लाह गुनाह गिनता नहीं, दिल की हालत देखता है और टूटा हुआ दिल उसे सबसे ज्यादा पसंद है। तौबा का बार बार टूट जाना नाफरमानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि दिल अभी मरा नहीं। गुनाह वो नहीं जो ख्याल में आए, गुनाह वो है जो दिल कबूल कर ले। अगर शैतान ने ख्याल डाला और तुम रुक गए तो लिखा तुम्हारा नाम फरिश्तों की फहरिस्त में गया। रूह को दाग गुनाह से नहीं इसरार से लगता है, जो रुक जाए वो पाक रहता है। मैंने इंसान को गुनाह करते देखा है, मगर खतरनाक वो है जो गुनाह को जायज समझ ले। दिल में अंधेरा गुनाह से नहीं मायूसी से फैलता है और उम्मीद अल्लाह का नूर है। अल्लाह उस हाथ को नहीं देखता जो लरज कर गुनाह छोड़ दे, वो उस दिल को देखता है जो लरजने के बाद भी न रुके। अगर गुनाह के बाद दिल रो पड़े तो समझ लो रब अभी करीब है। शैतान गुनाह से नहीं जीतता, वो जीतता है जब इंसान ये मान ले कि अब वापसी मुमकिन नहीं। जो नफ्स को रोक ले वो फरिश्तों से बुलंद है और जो नफ्स के आगे झुक जाए वो जानवरों से कम। मैंने देखा खामोश नदामत हजार बुलंद दुआओं से ज्यादा असर रखती है। गुनाह के बाद अगर दिल जिंदा है तो समझ लो अल्लाह ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया। सबसे बड़ा गुनाह गुनाह नहीं बल्कि ये यकीन है कि अल्लाह अब मुआफ नहीं करेगा। दिल को अगर अल्लाह की तरफ मोड़ लो तो दुनिया की हर ठोकर सबक बन जाती है, और अगर दिल दुनिया के हवाले कर दो तो हर नेमत भी आजमाइश बन जाती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये अक्ल की गहराई की अलामत होती है। शोर मचाने वाले अक्सर खाली होते हैं और खामोश रहने वाले बहुत कुछ जानते हैं। जो शख्स अपने नफ्स को पहचान ले वो दूसरों को नीचा दिखाने से बच जाता है, क्योंकि खुद को जानने वाला गुरूर के करीब नहीं जाता। दिल की सफाई अल्फाज से नहीं, नीयत की सच्चाई से होती है। वो अमल जो दिखावे के लिए हो वो इबादत नहीं आदत होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा फितना अपनी ही बड़ाई का एहसास है। जब इंसान खुद को बड़ा समझ ले वही लम्हा उसके ज़वाल की इब्तिदा होता है। अगर सब्र सीखना है तो वक्त को उस्ताद बना लो। वक्त हर इंसान को वो सबक जरूर सिखाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। हक कड़वा जरूर होता है मगर शिफा उसी में होती है, और बातिल मीठा जरूर लगता है मगर अंजाम हमेशा तल्ख होता है। जो शख्स दिल से माफ कर देता है वो अपने रब के करीब हो जाता है, और जो बदला लेने में जीत तलाश करे वो खुद को अंदर से हार देता है। इल्म वो नहीं जो जुबान पर हो, इल्म वो है जो अमल में नजर आए। जो इल्म किरदार न बदले वो बोझ बन जाता है। दुनिया तुम्हें आजमाती नहीं बल्कि तुम्हारा असल चेहरा दिखाती है। मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन महज तमाशाई। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं, और जब नीयत में खोट हो तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगते हैं। दिल का सुकून माल में नहीं बल्कि कनात में छुपा होता है। जिस दिन इंसान को ये राज समझ आ जाए उसी दिन वो अमीर हो जाता है। जो शख्स खुद को दुरुस्त समझता रहे वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। इस्लाह हमेशा उसी को मिलती है जो खुद को काबिले इस्लाह समझे। जबान का जख्म तलवार के जख्म से गहरा होता है। तलवार जिस्म को जख्मी करती है और जबान रूह को। अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इंसान जल्दबाजी में हार मान लेता है और रब सब्र वालों को नवाजता है।
जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी तन्हा नहीं होता। लोग साथ छोड़ सकते हैं मगर रब नहीं छोड़ता। नफ्स को काबू में रखना सबसे बड़ी जहाद है, क्योंकि दुश्मन सामने हो तो आसान होता है और दुश्मन अंदर हो तो मुश्किल। अगर दिल जिंदा हो तो छोटी सी नसीहत भी काफी है, और अगर दिल मर चुका हो तो बड़े बड़े खुतबे भी बेअसर होते हैं। गुरूर इंसान को अकेला कर देता है और आजिज़ी दिलों को जोड़ देती है। जो झुकना सीख लेता है वही असल में बुलंद होता है। वक्त की कदर ना करने वाला जिंदगी की कदर भी नहीं करता। जो लम्हा जाया करता है वो दरअसल खुद को खो देता है। खामोश रहकर हक पर कायम रहना आसान नहीं होता, मगर यही खामोशी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जो शख्स दूसरों की खताओं पर हंसे वो अपनी बारी भूल जाता है, क्योंकि हिसाब सबका होता है, बस वक्त अलग अलग आता है। दिल अगर रब से जुड़ा हो तो खौफ मिट जाता है, और अगर दिल दुनिया में अटका हो तो चैन हमेशा के लिए छिन जाता है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो तारीफ में साथ दे, सच्चा दोस्त वो है जो गलती पर रोक ले। अगर तुम चाहते हो कि दुआ कबूल हो तो रिज़्क को पाक रखो, क्योंकि हराम का एक लुक़मा दुआओं के दरवाजे बंद कर देता है। इंसान का असल वजन उसके किरदार से नापा जाता है। ऊंचा ओहदा या ऊंची आवाज किसी को बड़ा नहीं बनाती। जब अल्लाह किसी को गिराता है तो शोर नहीं होता, और जब किसी को उठाता है तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। जो शख्स अपने माजी से सीख ले वो मुस्तकबिल से नहीं डरता, और जो माजी में ही उलझा रहे वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तुम चाहते हो कि दिल साफ रहे तो नियत को बार बार टटोलो, क्योंकि नियत बिगड़ जाए तो अच्छा अमल भी खराब हो जाता है। खामोशी में जो सुकून है वो अल्फाज में नहीं, और सब्र में जो ताकत है वो जल्दबाजी में नहीं।